Hello guys, today is my first day of Agentic AI, AI MLs. I'm cover AI topics, ML topics, and all these topics in Gen AI, land chain, land graphs, and everything latest technologies. I'm cover all of these AI revolutions. So basically, today I'm showing you. I'm practical in this video for the like you can see on my desktop. So you can see like that today is my first day. So here we am using a PDF, load the PDF in a system for giving you LLM models and embedded. After that they chunk all the paragraphs and like that of the PDF based on different approaches and then download or in vector forms to store in a vector forms in DB. For vector DB, you can call say vector DB. Okay, then after you can say that user giving a query, अगर user query देता है, then API calls the query. So here is the transformers. They convert the query in the vector DB for like 0 and 1 binary in binary forms. You can say that. So then this vector form query going to the vector DB database, then query select query or another query can be run and then find out the sentence actual answer of the in the ChatGPT. Okay, so then here we can use sentiments of the users and all of these. So all of these can you can say that all of these models can be used for embedded tools and like external tools, agents and tools repository you can be used. So guys here we can be experiment or labs on in the Jupyter notebook. So here we am install the pip install OpenAI. I'm using the pip OpenAI. Most of the cases I'm using on this LLM models. So I'm going cover all of these topics first day. So basically, I'm cover all these topics. Page one, page two, nothing. Okay, so I'm covering agentic AI, Gen AI, ML also, ML ops also cover, and also be covering I'm also covering auto like AutoGen frameworks and also be LLM and LLM enterprise applications, right? They can be used. Okay, here is my first, second, third, and fourth. Then after the in next day, I am day two. What my plan? So architecture, LLM agents. ओके LLM agents को हम पढ़ेंगे इसमें हमारा पैटर्न्स होंगे एंड फ्रेमवर्क्स ऑल्सो बी अ फ्रेमवर्क्स सो हम इसमें ऑल प्रैक्टिकल करेंगे कोई भी हमारा थॉटिकल कंसेप्ट नहीं है इसमें सो सिक्स्थ वन आई एम बेसिक कवर ऑल ऑफ दिस सो इन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सिंगल
like a single agent system. Okay, and also we can use multi agent systems. Okay, so basically my focus for more and more in practical knowledge. So I'm using a notebook. Basically, I'm using a notebook, Jupyter notebook and Anacondas. So you can be install Anaconda or like a Jupyter notebook. So here I'm so make a Jupyter notebook. So, here is my OpenAI platform. You can see that I'm use the OpenAI creator of create a API key, then use in this project. Okay, Mm, got it. So day 2 clear and सिंगल एजेंट्स इसके अंदर हम टास्क फ्लो कवर करेंगे और क्या कवर करने वाले हैं हम इसमें रीजन्स लूप्स रीजन्स लूप्स कैसे होंगे उसका फ्लो कैसा होगा हाउ टू चेक द डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स वैल्यू सो ये हमारे हो गए ठीक है पहले पहले डे में हम ये मैंने बता दिया थोड़ा हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे थर्ड डे सेकंड में हम ऐसे करेंगे दिस इज माई प्लान गोइंग एंड डे 3 में हम इसको कवर अप करेंगे डे 3 में हम करेंगे बिल्ड ए टास्क ओरिएंटेड ओके ओरिएंटेड एजेंट्स बनाएंगे हम एंड यूजिंग ऑटोजेन फिर हम इसमें डेटाबेस भी यूज़ करेंगे वेक्टर डीबी कि हमने बना तो लिया एक पीडीएफ को हमने पीडीएफ को कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स ओके कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स देन स्टोर उसको स्टोर भी तो करना है हमें उस डीबी को स्टोर इन डीबी और उसको हम किस मेथडोलॉजी से फाइंड आउट करेंगे सर्च करेंगे हम ये कह सकते हैं कि चल जिस हमारा जो वक्त है जो टाइम टेकिंग है वो कम से कम हो और सर्चिंग अच्छी हो और सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें वो दे सो बेसिकली हो क्या रहा था जो रैग है रैग उसमें हम पीडीएफ को चंक कर रहे थे सो हमारे ये चंक हो गए ठीक है चंक कर रहे थे फॉर एग्जांपल बेस ऑफ जहाँ पर उसका कंटेंट है फॉर एग्जांपल हम अ, प्रदीप गाइड ले लेते हैं जो मेडिकल की कुछ भी हम मेडिकल की नोटबुक ले लें या कुछ भी जिसमें कंटेंट लिखा हो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडलाइन थी और उसका ये पैराग्राफ है वो हेडलाइंस के अकॉर्डिंग चंक कर रहा था दिस इज माय हेडर दिस इज माय पैराग्राफ सो अब वेक्टर जो वेक्टर लेस आया है वेक्टर लेस टैग आया है उसके अंदर हो क्या रहा है वो एक ट्री बना रहा है ठीक है एक नोड एक ट्री बना रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो फॉर एग्जांपल एक बाइनरी ट्री के हिसाब जैसे बाइनरी ट्रीज होते हैं हमारे और प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर्स होते हैं उस तरीके से वो बनाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा टॉपिक है स्टोर का तो वो स्टोर के अंदर ही डीप जाएगा स्टोर यहाँ पर स्टोर लैब है तो वो इस साइड इस ब्रांच को अवॉइड कर देगा और डीप एंड डीप इनसाइड वो इस साइड जाएगा सो इसलिए यहाँ पर ये एक फास्ट अप्रोच हो जाती है फॉर द सर्चिंग द वेक्टर्स ओके
तो बेसिकली आपको फंडामेंटल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिकल्स इन लैब, कीप इट अ नोटबुक, सो हम टाइम वेस्ट ना करके बेसिकली हम उसी पे जाएं से। सो हम लैब पे आ गए हैं अपनी, तो हम देखेंगे लैब पे कैसे काम किया जाए, जल्दी से जल्दी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। लाइक ओके। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हम एक मिनट। अब हम फॉर्म में आ जाते हैं, थोड़ा कोडिंग में। ओके। या so basically I'm storing here my second API Google Secrets. So let's be a start. Install that. First of all, I'm set in a API key, so you have to generate the API key in OpenAI platform. You have to go and then check Open My Key for create Open Key, and यहाँ पर आप डेमो टेस्ट डाल सकते हैं, then demo projects and all, then create my open keywords. Okay, you can and click click, you can say that open underscore API. Okay, here that's my open AI key. Okay, so we have import another thing, so I will be need some imports files. So import OS and import OpenAI। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए ये एक पूरी सीरीज 10 डेज की बनाने वाला हूँ, और 10 डेज में 1 आवर इज सफिशेंट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। ओपन एआई राइट, एंड ओपन एआई ओके, confirm the Google from the google.collab. So I'm write down all the import files. So let's be a check out. Okay, गूगल कोलैब इनपुट इंपोर्ट यूज़र डेटा से हम कोलैब कर रहे हैं, यूज़र डेटा के अंदर से हम गूगल कोलैब निकाल रहे हैं ओपन एआई से, फ्रॉम ओपन एआई, एंड देन वी हैव basically I'm write the code in code, then after that send upload on the GitHub. So user basically here is my open API key, you can check। आप इसको अलग फाइल में भी डाल सकते हैं। बेसिकली ये अभी प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं, ऐसे गूगल की जो भी अपनी एपीआई है वो यहाँ पर हम डालेंगे नहीं, एज ए सिक्योरिटी पर्पस। ओके, यहाँ पर हमने रेज एक्सेप्शंस कर दी है। ओके, that's my all code for the first module, and we can be run check। Okay, sit and what we got import OS module not found। ओके 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 ओके, यहाँ पर हमें ओके
यहाँ पर हमें मॉड्यूल, इसको ये वाला मॉड्यूल है जो हमारा है, ये हमें मिला नहीं है। कौन सा वाला? यूजर यूजर डेटा, राइट। ये वाला हमें मिला नहीं है। तो ये वाला कैसे मिलेगा? हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल यूजर वाला, तो तब ये हमें मिलेगा। ओके। सो हम इसको जल्दी से जल्दी करते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं फटाफट। इंस्टॉल, मैं इसको क्या है ये, राइट। सो हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ओएस हो गया, हमारा ओएस सिस्टम हो गया, ओपन एआई को हम कॉल कर रहे हैं, यूज़र जो डेटा है उसको हम गूगल कोलैप्स कर रहे हैं, राइट। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पर। लोड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल शूट होता हुआ दिख रहा है। ओके। सो यहाँ पर हमारा क्या मिसिंग हो गया है, चेक। इसको यहाँ पर ये जो है फॉर्म फाइल। ओके 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 ओके, मैंने क्या किया यहाँ पर, गेट यूजर। ओके ओके ओके। ये ओपन शिफ्ट एंड this one, then I will run shift and will be having lines until set the environment and the initial occupant so we can load. Okay. Yes, yes. ओके, तो ये इसको कुछ ये नहीं मिल रही है, डोंट वरी, हम इसको लोड डॉट इन्वायरमेंट से करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है दिस वन, okay, okay, okay. I think it can be bulk or not. Open API key is not found. Okay, yes, environment.
Wait. Okay. So here we create a one more file. What happened right now? In this folder, I'll create a what will be happen? Okay, new file. Dot. Import user data. So what will be गाइस अभी सेटअप हुआ नहीं है ढंग से तो थोड़ा सा एक बार सेटअप हो जाए तो हम इसको फटाफट से क्लियर करेंगे। ओके सेम एस राइट क्लिक इन्वायरमेंट यहाँ पर हमें एक इन्वायरमेंट फाइल बनानी होगी उसके अंदर एपीआई डालेंगे और वहाँ से हम उसको कॉल कराएंगे रीनेम डॉट you have to go and new file so go and desktop हम यहाँ पे environment डॉट फाइल लिख देते हैं not follow tag trace
और डिलीट करते हैं। सो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको भी ऐसी कि एक फोल्डर में फोल्डर के अंदर कैसे हम डायरेक्टरीज बनाएं। ओके। टेक्स्ट डॉट इन्वायरमेंट हम करके बनाते हैं। ओके, दैट्स फाइन। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। या इट्स वर्किंग। ओके, एपीआई की डॉट, राइट। सो हम बेसिकली यहाँ पर चलेंगे और एक बार यहाँ पर एंटर इट, हम इसको पिप स्टॉल एपीआई से ही करेंगे। हम जब तक इन्वायरमेंट को हम क्रिएट करते हैं तब हमारा पिप इंस्टॉल हो जाए। ओके ओके ओके। सो अभी के लिए हम शिफ्ट एंटर करते हैं। ओके, ये भी हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है, ये पिप इंस्टॉल हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप पिप इंस्टॉल्स हमारा जो है एपीआई सीक्रेट की कॉपी डन। सो हमने जो यहाँ पर बनाया है वो ये दिस वन। Key not found, API key not found. Where is it? Okay. Get environment. Environment file goes to load from dot dot not dot text dot environment के अंदर हमारी फाइल है। सो यहाँ पर हम API shift enter text dot
will be changed. Okay, so you can say that अगर आपकी फाइल का नेम है कुछ और you can say that text environment के अंदर हमारा load dot environment you can say everything is same बस load dot environment के अंदर हमारी फाइल क्या है ये है। और अगर हम चलें ये text dot environment हमने बनाया हुआ है। सो लेट्स हैव चेक इट। या सो फाइनली हो क्या रहा था, हम यहाँ पर एपीआई है जो हमारी एपीआई की है, मैं डायरेक्टली कॉल करा रहा था उसको। सो कॉल वो ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, कॉल मैं करा रहा था जो पिप इंस्टॉल किया हमने ओपन एआई को, देन उसके बाद हमने पाइथन इन्वायरमेंट्स को क्रिएट किया। उसके बाद हमने कहा कि ओपन एआई ओएस एंड ओपन एआई में डिव लोडेड किया, और यहाँ पर जो हमारी फाइल थी जो स्ट्रक्चर है दिस वन और दिस वन, इसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। और हम इसको रीनेम कर देते हैं डे वन, यहाँ पर डे अंडरस्कोर वन कर देते हैं डे वन। और यहाँ पर हमारा जो एपीआई है वो कॉल हो चुका है, और एपीआई हमारा जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सो एपीआई लॉड इस एनवायरनमेंट, ओके। सो बेसिकली हम हेयर यहाँ करेंगे, हम अब यहाँ पर जनरेटर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जनरेटर्स का। तो जनरेटर्स होते क्या हैं बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें यही समझना है कि जनरेटर्स होते क्या हैं और कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करते, ठीक है। सो हम समझेंगे जनरेटर्स के बारे में। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा कीवर्ड्स दिस वन। सो बेसिकली हमने अभी कर क्या क्या किया, एक हम समरी फ्लो समझ लेते हैं। हमने फ्लो, सो यू कैन से डैट पहले हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, टेक्स्ट डॉट इन्वायरमेंट, ओके। हमने टेक्स्ट डॉट इन्वायरमेंट बनाया और उसके बाद हमने एक फ़ाइल बनाई है, और फाइल के अंदर हमने एपीआई सीक्रेट की डाली है जो कि एपीआई ओपन एपीआई की है, ओपन एआई, ठीक है। उसके बाद हमारी उसके अंदर एक डायरेक्टरी है वो जो है डे वन के नाम से, डे वन डॉट पी एच वाई के नाम से है, ठीक है। तो हमने ये किया है। तो अब हमने क्या किया, लोड मेमोरी करी, ओएस गेट इन्वायरमेंट किया, उसके अंदर हमने रीड कराई है की को, जो की थी उसको रीड किया है, इंटरकनेक्ट किया है एक दूसरे से, और ओएस इन्वायरमेंट का जो वो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम बातचीत कर सके ओपन एआई से। उसके बाद हमारा ओपन एआई फंक्शन कॉल हुआ, और अब हम उसको रेडी है वो हमारा क्लाइंट बात करने के लिए, क्लाइंट यूज़ के लिए, ठीक है। सो ये हमने सब कुछ किया। अब हम आगे पढ़ेंगे जनरेटर्स। अब हम जनरेटर पढ़ेंगे, जनरेटर होता क्या है और कैसे कैसे यूज़ आता है वो।
हम फटाफट जाएंगे, फटाफट इसको कवर करते हुए जाएंगे। उसके बाद हम जो हमारा होगा, डेटाबेस को रीड कैसे करते हैं, डेटाबेस भी हमें रीड करना है, हर एक चीज़ हम डीपली पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम जनरेटर्स को देखें तो जनरेटर्स एक कोड होता है, कोड कंटेंट है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी पेन बहुत मोटा है, तो कोड कंटेस्ट है वो एलएलएम में यूज होता है, ठीक है। इसको हम जनरेटर्स टेक्स्ट आउटपुट बेस्ड ऑन योर इनपुट, जो इनपुट है और जो टेक्स्ट है वो बेस करेगा हमारे आउटपुट पे, ठीक है। जो इनपुट दिया और जो टेक्स्ट गया वो आउटपुट निकाल के देगा, जनरेट करता है, ठीक है। सो यू कैन से you give input text, right, then जनरेटर एक मीडिएटर का काम करता है, बीच में होता है। सो जीपीटी मॉडल हो सकता है, राइट, यहाँ पर। और इसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इट। और यहाँ पर हमारा होता है जनरेटर आउटपुट, और इसको हम कोलैबोरेटेड टेक्स्ट भी कहते हैं, ओके। सो बेसिकली सिंपल है कि हम्म, अरे यार क्या, भाई कलर चेंज हो जाना। सिंपल है, हमने यहाँ पर इनपुट दिया, टेक्स्ट गया, जनरेटर के पास गया एंड उसने आउटपुट दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डाला इसमें दिल्ली, सो दिल्ली इमेजेस, वो यहाँ पर चैट जीपीटी है, जीपीटी मॉडल है, जो भी हमारा मॉडल है वो दिल्ली, वो आउटपुट दे देगा हमारे दिल्ली की इमेजेस सारी यहाँ पर कलेक्ट करके दे देगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। ये एक जनरेटर है। तो हम इसको कैसे करते हैं वो हम एक जुपिटर नोटबुक पे फटाफट से चलते हैं और फटाफट हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं जनरेटर्स। हाँ, क्रिएट जनरेटर, और हम इसी में कर लेते हैं इंपोर्ट। हमने यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट ओएस, ओके, देन गोइंग फॉर इंपोर्ट ओपन एआई। जो भी आप मॉडल यूज़ करना चाहें, जिसकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंपोर्ट कर लें। सो बेसिकली मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करा दिया, तो हर नोड में कराना ज़रूरी नहीं है, हर रो के अंदर। सो इट्स बेसिकली ये आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को तो पता है कि एक बार हमने इंपोर्ट कहीं पे कर दिया तो वो काम कर लेगा। यहाँ पर हम सी एल आई एन टी क्लाइंट ओपन एपीआई, राइट। यहाँ पर क्लाइंट के अंदर हमारा क्या है, ओपन एआई, एआई है, एआई के अंदर क्या है, की है जो यहाँ पर ये बात करने वाली है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो कुछ क्वायरीज पास हुई या नहीं हुई, अभी नहीं हुई है, ओके, लेट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हमने ओपन एआई कर दिया, अब हम जनरेट से इंपोर्ट कर रहे हैं जनरेटर। सो बेसिकली मैं जनरेटर कौन सा रखने वाला हूँ यहाँ पर, जो मैं रखूँगा वो मॉडल रखूँगा चैट जीपीटी
5.2, अगर हम यहाँ पर चलें तो GPT 5.4, 5. फास्टर, कॉस्ट इंटेलिजेंट, न्यू क्लास इंटेलिजेंट, कोई चैट लॉग्स यूसेस में जाके देखूँ तो कुछ हुआ। वेक्टर स्टोरेज है, हम कितना स्टोर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ हम यहाँ देखेंगे। एम्बेडेड वेब शेयरिंग, images, everything you can see in this side menu patches. Okay, okay. Here I'm seeing three models, GPT 4 mini, so I'm using cost efficient 5.4. So 5.4 mini. 5.4 and some small letters, all in small mini. Okay, so हम बेसिकली यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट इनपुट्स, सो यहाँ पर हम इनपुट्स देंगे और क्रिएट इनपुट्स। बेसिकली हम हो क्या रहा है हम एक बार देखेंगे फटाफट से इसको। आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, देन फटाफट इसको इस कोड को समझ लेते हैं हो क्या रहा है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने आईटेक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट पास किया है जिसके अंदर हमारा इनपुट होगा। जो टेक्स्ट इनपुट है एंड उसके ज्वाइन करें न्यू लाइन से वो स्टार्ट होता रहे। सो हमने प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज एक्ट में फॉलोइंग दिस कंटेंट, यहाँ से ये स्टार्ट होगा फॉलोइंग दिस कंटेंट। सो टेक्स्ट इनपुट, सो ट्राई रिस्पॉन्स, सो चैट हमारा क्लाइंट है, वो चैट डॉट कंप्लायंस क्रिएट करेगा। हमने एक फंक्शंस बनाया, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, मॉडल डालेंगे और एक मैसेज डालेंगे। जो मॉडल है हमने उसका नाम दे दिया GPT 5.4 मिनी, और ये मॉडल इसको इस वेरिएबल्स को कॉल कर रहा है। ओके, और मैसेज में हमने डाल दिया सिस्टम कंटेंट, असिस्टेंट कंटेंट और रोल यूज़र। अब हमने बेसिकली करा क्या है, पहली लाइन में बोला है जो यूज़र है, हमने थ्री वैक्टर्स, थ्री हम कह सकते हैं एक्टर्स बनाए हैं हमने। पहला हमारा यूज़र है, दूसरा असिस्टेंट है, तीसरा हमारा सिस्टम है। सो बेसिकली ये हमने इसमें डिफाइन क्या किया है, हम चाहें तो बेसिकली हमने उसको ये बोला है, ये हमारा यूज़र है और ये हमारा असिस्टेंट है जो कि जीपीटी है, और ये हमारा आउटपुट है, सिस्टम है। कुछ इस तरीके से हमने ये बोला है, और जो यूज़र है वो हमें प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। और जीपीटी है वो हमारा 5.4 है, वो यहाँ पर इसको हैंडल करेगा इस प्रॉम्प्ट को, और ये सिस्टम में जाएगा और बैक जाके इसको यूज़र को आउटपुट देगा। यहाँ पर हमारा सिस्टम है जो कि प्रोसेस करेगा। ये हमारा प्रोसेस हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, और स्टेप 4 हमारा हो गया आउटपुट। ओके,
तो हमने कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर उसको बोला है। हमारा पहला रोल है सिस्टम, फिर असिस्टेंट, फिर यूजर। कैन यू एक्सप्लेन, रीड द इनपुट एंड आंसर इन डिटेल। हमने असिस्टेंट को बोला, जो असिस्टेंट है वो हमारा है मॉडल, जीपीटी मॉडल, ओके। और जो सिस्टम है उसको हम प्रोसेस करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज है, एनएलपी, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज एक्सरसाइज एक्सपर्ट जिसे हम कह रहे हैं। और वो मॉडल कुछ भी हो सकता है, एलएमपी, एनएलपी को हमने यूज़ किया है इसमें, नेचुरल, ठीक है। सो फिर हमने उसका टेम्परेचर दिया है, एट द टेम्परेचर पैरामीटर्स यू कैन, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बट मिनिमम मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा इसको। देन हमने कहा कि रिटर्न करे रिस्पॉन्स जो भी आएगा, चूज इंडेक्स वैल्यू 1, मैसेज, कंटेंट, और उसको स्प्लिट करे, मतलब फालतू फाल स्पेस वगैरह वो सब रिमूव कर दे, स्प्लिट करे। एंड अगर इसको कुछ नहीं मिल रहा है ट्राई में तो वो एक्सेप्शन रेज करेगा और रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। सो हम बेसिकली इसको रन करके देखते हैं अगर इसमें कुछ एरर ना आए। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन हमने बिल्ड कर दिया है, यहाँ पर जनरेटर्स को बिल्ड किया है। तो अब हम फोर्थ स्टेप रहेगा हमारा टेक्स्ट रैप, जो हम इनपुट देंगे वो इनपुट कैसा होगा। ठीक है, अभी हमने कोई इनपुट दिया नहीं है, हमने सिर्फ इसको यहाँ पर क्या किया है, अभी सिर्फ हमने इसको यहाँ पर फंक्शनिंग बनाई है। अभी हमने सिर्फ पहले का एपीआई को कॉल कराया, ठीक है, एपीआई हमारी रेडी है, क्लाइंट हमारा रेडी है। अब उसको हम अपने वेक्टर्स दे, अपना क्या कहते हैं, यूज़र, असिस्टेंट, और हम करैक्टर दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं हम एक करैक्टर डिफाइन करें, ये हमारा यूज़र है जो हमें प्रॉम्प्ट देगा। असिस्टेंट है, असिस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया कंटेंट में। सिस्टम है, सिस्टम को डिफाइन कर दिया, सिस्टम में कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, एनएलपी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे और भी ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ये हमारा एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हमने डिफाइन कर दी हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो अब हम इसको फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स कैसे करता है ये। सो हम यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स, दिस इज माय फर्स्ट डे। सो मैं भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी धीरे धीरे आदत बन जाएगी जब हम रोज़ वीडियोस बनाएंगे। सो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि जो इनपुट आएगा, अब हम डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट, रिस्पॉन्स जब आएगा तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। सो प्रिंट फॉर्मेट का हम एक सो रिस्पॉन्स कैसे करेगा वो हम पहले देखेंगे कि जो भी रिस्पॉन्स आया वो पहले तो कॉलम्स वाइड, कॉलम्स की ब्रेथ को हम डिसाइड करेंगे। ये ना हो कि वो जो स्पेस है वो इस से भी बाहर जा रहा है, तो हमें टेक्स्ट वैप करना है, कितने में वैप हो जाए वो तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डॉट वैप। टेक्स्ट वैप, इसमें ऑटो टेक्स्ट भी नहीं है, वो भी मैं ऐड करूँगा अभी कि ऑटो टाइप हो जाए। ऑटो टाइप टैग, उससे हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल्स करेंगे। थोड़ा एडवांस में बना दूंगा इस सिस्टम को, डोंट वरी, आपकी हेल्प के लिए। एंड मोर प्रैक्टिकल्स एंड फन करेंगे हम यहाँ पर। सो 80 कर दिया। सो हमने यहाँ पर सेट किया है 80, 80 कॉलम्स, ओके, ठीक है। सो इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, वेपर, राइट, एंड देन एंटर। सो हम यहाँ पर वेपर को, वेपर डॉट फिल, या वेपर डॉट फिल को हम फिल करेंगे। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा जो है it इक्वल टू रिस्पॉन्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
और यहाँ पर हम इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं टेक्स्ट में। राइट, सो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट में आएगा, टेक्स्ट, और वो फिल करेगा उसको वेब पर से। ओके, सो हम कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अभी हम कमेंट करते हैं यहाँ पर। सो अब हम फटाफट प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा वेब पे कैसे प्रिंट होता है। ठीक है, सो लाइक दैट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन में, लाइक प्रिंट फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स, ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स का। सो हम पहले हमने बनाया, कॉल किया, जनरेटर्स में हमने कैरेक्टर्स बता दिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से है, प्रिंट रिस्पॉन्स प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट हमारा वेब हो गया और न्यू लाइन्स। ओके, सो अनएक्सपेक्ट, ओके, 10 कॉट 10 शिफ्ट एंटर। ओके, ये हमारा एक फंक्शन में हो गया टैब, देन दिस विल शिफ्ट एंटर फॉर्मेट डॉट। ओके के पास, ओके, and elements response. Hmm, yeah, this one will enter. Okay, shift enter, right. Okay, no issue, no error. Okay, so let's be my third step going for the data. My format is my step second right now. Step 2, here we are going for, right, step step 1, here we call the open AI, open API, my first step. Okay, second step, here my generators. सो हम डिफाइन यहाँ पर जनरेटर्स क्या है, हमने फंक्शंस में उसके कैरेक्टर्स रोल्स क्या हैं वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। और थर्ड में हमने फॉर्मेट रिस्पॉन्स किया है। स्टेप 3, ओके, स्टेप 3 में हमने फॉर्मेटेड जो हमारा कैसा रिस्पॉन्स चाहिए, तो यू कैन से यहाँ पर डेटा हम सिमुलेट करेंगे ओरेकल डीबी रिलायबल से। सो आई एम गोइंग फॉर द राइट विकिपीडिया, स्मॉल पीडिया, कुछ भी हम विकिपीडिया इंडिया। सो यू कैन go check British stars, India dependencies. So and pick this paragraph, right? And pick this paragraph and make some, मैं अभी इसको बनाने की कोशिश करूँगा db डॉट कोड। ये हमने जो उठाया है, ठीक है, और हम इसको डाल देंगे स्ट्रिंग्स में, इज माई स्ट्रिंग वैल्यू। और ये हमारा रिकॉर्ड है, ये बेसिकली एक पैराग्राफ लिया है। सो यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ्स हो सकती हैं। अभी हम जस्ट लाइक ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये हमारा डीबी में से डेटा आ रहा है, ये पैराग्राफ हमारा डीबी में स्टोर था और
ये हमारा डेटा है जो डीबी के अंदर है, हम इसको प्रोसेस करने वाले हैं। ओके, सो लाइक दैट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह सकते हैं हम इसको बेसिकली। सो यहाँ पर और कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, दिस वन, एंटर दिस वन। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पर हमने रैक का भी थोड़ा सा यूज़ किया है, ETL, डेटा रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, सो वेक्टराइजेशन। सो इसमें आप देखें यहाँ पर कॉमा है, देन सेमीकोलन, उसके बाद कॉमा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये फैच करने की कोशिश की है, डायरेक्टली फैच कर रहे हैं हम डेटा को। ओके, सो वी गो एंड दैट्स ग्रेट। ये हमारा एक डेटा हो गया रिकॉर्ड। अगर हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टोकन यूज़ ना हो क्योंकि फिर पेड हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट, इतना काफ़ी है क्योंकि चैट जीपीटी हमारा है वो कुछ टोकन्स ही देता है हमें। ओके, टोटल टोकन्स अभी हुए नहीं है, दैट्स ग्रेट। प्रैक्टिकल करते रहो, मैं पेड भी लूँगा इसमें। सो लेट्स, सो हमारा डेटा हमने फॉर एग्जांपल ओरेकल से लिया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं फ्रॉम द डीबी। किस से, यहाँ पर हम देखें कोमा है और स्टॉप है। सो हम उसको बोलेंगे पैराग्राफ। हम इस पैराग्राफ को पूरा एक पैराग्राफ बना लेंगे, पूरा एक चंक बना लेंगे। अभी ये लाइन वाइज लाइन है, तो हम कहते हैं उसको स्पेस ना हो, डॉट, जहाँ पर भी है ज्वाइन करे db डॉट रिकॉर्ड्स। ओके, और ये किस में डाल दे, पैराग्राफ में। हमें पैराग्राफ में ये डाल देगा, कैसे डालेगा, जहाँ पे ये डॉट्स हैं उनको हटा देगा, ये इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा इनको, तो यहाँ से ये एक एक पैराग्राफ में चले जाएंगे। सो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, के you can then enter paragraph tracking, then 70, okay, TP not big, okay, ओके, यहाँ पर एस नहीं है, then enter hit, then shift enter, what will be happen, db record is not defined। ओके 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 ओके, हम इसको एक बार शिफ्ट एंटर रन, शिफ्ट एंटर रन, और हम यहाँ पर प्रिंट पैराग्राफ, oops, print, I am also mad, print paragraph, right, ये string object not call we call, okay okay okay, I will be check what will be happen, db database, okay, what will be happen, paragraph, this one, print join.db, first of all I'm check db, क्या ये प्रिंट हो रहा है, db records, print enter,
some problem. So here shift enter, yeah, db यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है. सो लेट्स बी, db हमारा यहाँ प्रिंट हो गया. डॉट हमारे जहाँ भी हैं, मैं डॉट ज्वाइन, और अब हम यहाँ पर चलते हैं. हमारा जो है db रिकॉर्ड्स, उनको एक पैराग्राफ में बना कर दो. पैराग्राफ, यू कैन क्रिएट द पैराग्राफ in paragraph parameter. So let's have check it. Shift enter, और यहाँ पर हम पैराग्राफ, राइट, शिफ्ट एंटर, पैराग्राफ हमारा आ गया. ओके, दैट्स ग्रेट. अब मैं एक बार चेक करता हूँ अपना एपीआई पे. आई विल बी रिफ्रेश इट. कितने टोकन यूज हुए हैं? नो वन. दैट्स ग्रेट. सो यहाँ पर हमारा जो लाइन पर वर्क है वो न्यू लाइन्स में था. ओके, हमने पैराग्राफ में बना लिया यहाँ पर. ठीक है, db डॉट, आप कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. और आप एक चीज़ देखें, ये बाहर तक जा रहा है, तो आई वांट कि ये थोड़ा वैप अप हो जाए. वैप वैप डॉट टेक्स्ट में हम इसको आई थिंक करना चाहेंगे कि टेक्स्ट डॉट वैप, जो हमने ऊपर किया था, दिस वन, या हम 80% ही करना चाहेंगे इसको. दिस वन वैप टेक्स्ट. ओके, सो आई विल अगेन रीरन 80. रेट 80 अगर हम 50 कर देते हैं, देन व्हाट विल बी हैपन राइट नाउ? नथिंग. व्हाई? 20, शिफ्ट एंटर. ओके, then I'm going for the 100. Anything will be changed? No. Why no? Import that dot text. अगर हम इस पे db dot com, text करें हम, तो shift and what will be 100. Okay, then हम 60 shift and nothing. Okay, what will be my mistake? Where is my mistake? Why not? वर्किंग, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार हम चेक करते हैं. इसको करना चाहिए, इसकी ब्रेथ कम और ज़्यादा होनी चाहिए. So I'm not like, so people sit and nothing. Okay, I will be refresh one more time. Reload.
गाइस नॉट वर्किंग, सो इसको देखेंगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है। सो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी। आई थिंक आई विल बी डिबग इट। सो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से कट जानी चाहिए थी, इतनी हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर कटी नहीं है ये। सो व्हाट विल बी लाइट। ओके, सो व्हाट विल बी हैपन राइट नाउ हियर। आई एम डिस्क्राइब। सो यहाँ पर हमारा जो है वो एक लिस्ट के अंदर है, राइट। और लिस्ट के अंदर एक छोटे छोटे आइटम्स हैं, न्यू न्यू लाइंस हैं, राइट। सो एक एक एलिमेंट को हमें रीड करना होगा, तो हम वी कैन बी यूज द फॉर लूप। सो डीबी के अंदर जो भी आइटम्स हैं फॉर लूप, सो आइटम इन स्ट्रिंग और उनको ज्वाइन करें फॉर एग्जांपल। सो लेट्स हैव एंटर। हम्म ओके, नाइन मिस्टेक। तो यहाँ पर 80 हम कर देते हैं शिफ्ट एंटर। देख रहे हो काफ़ी बड़ा हो गया ये। सो अगर मैं इसको 40 करूँ शिफ्ट एंटर, तो ये थोड़ा पैप अप हो जाएगा। ओके गाइस, व्हाई नॉट बी आई एम रॉन्ग प्रिंट, आई एम कॉल द रॉन्ग वेरिएबल। ये वेपर डॉट टेक्स्ट या 40 नॉट टेक्स्ट। ओके 80 check for the 80 shift enter. So go for this one, this and back. Right now what will be happen? Okay, this not the same work of, yeah, 80 and 60 I will test again. Type 60 going for the 40 shift text where fill paragraph at 80. Okay, okay, you can see new line. How many new lines? Backspace you can say that। यहाँ पर बैक स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई, 10 10। सो पैराग्राफ के हर 10 वर्ड्स के बाद वो क्या कर रहा है, न्यू लाइन में लेके आ रहा है। शिफ्ट एंटर। अब देखो ये न्यू लाइन यहाँ पर आ गई, फिर ये न्यू लाइन यहाँ से जनरेट होगी। सो ये न्यू न्यू लाइन करके जाएगा, ठीक है, हमारा डिफरेंस हो जाएगा। सो व्हाट्स माय क्वेरी। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ वन होगा क्वेरी का। स्टेप 4, हम यहाँ पर उसको क्वेरी देने वाले हैं। क्वेरी में वो क्या क्या करने वाला है फटाफट से हम क्वेरी देंगे। क्वेरी क्वेरी में हमने कहा है कि हाउ टू ऑरिकल्स दैट अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेक्टर स्टोर रिगार्डिंग डेटा
security. Okay, so generator without argumentation, so you can see call, और हम यहाँ पर इसको हमने क्वेरी दिया और हम अब उसको कॉल कराएंगे किसको, LLM रिस्पॉन्स कॉल फंक्शन। वेयर इज माय कॉल फंक्शन, जो हमने ऊपर किया है फर्स्ट, या कॉल LLM विद फुल टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट है वो क्वेरी है ये, और प्रिंट फॉर्मेट रिक्वेस्ट, गोइंग फॉर द प्रिंट फॉर्मेट रिक्वेस्ट, वेयर इज माय, दिस इज अ रिस्पॉन्स। ये हमारा रिस्पॉन्स का फंक्शन है, ये हमारा इनपुट का फंक्शन है। और हमने एक क्वेरी दी, एक डेटाबेस लिया, डेटाबेस में हमारा ये है, इस टाइप का कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, हमने उसको क्लीन किया, एक पैराग्राफ में बनाया, पर्टिकुलर एक रेंज दी, उसको वैप अप किया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने डेटा को क्लीन किया। हम बेसिकली ये कह सकते हैं डेटा क्लीन हो गया। अब हमने हमने उसको कहा कि उसमें से हमें कुछ भी हमने क्वेश्चन पूछ लिया फॉर द रैग अप्रोचेस। सो यहाँ पर हमने इसको अब शिफ्ट एंड कॉलम किया। what will be what will be happen right now here, so string object is not call query. I will be check shift enter, shift and what will be right now, I'm going for, एक मिनट, इसको हम कंट्रोल एक्स करके इसको पहले रन करेंगे, शिफ्ट एंटर, इट्स वर्किंग, दिस query is working, step for query is working, then यहाँ पर गए हम, शिफ्ट एंटर, that's great। ये क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स प्रिंट डिफॉर्मेटेड बाय प्रिंट रिस्पॉन्स वेब ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नॉट बी कॉल्ड। ओके, will be happen right now, describe format रिस्पॉन्स, फिर हमने किया यहाँ पर जो टेक्स्ट आया वो रिस्पॉन्स हो गया, ये स्ट्रिंग। ओके, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, right now, shift enter, we can be run। ओके, सो हम इसको इनपुट करके शिफ्ट एंटर करते हैं, क्वेरी हम LLM रिस्पॉन्स में डाल रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए हमारा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिस्टेक करी है कहीं पे, join and print vectors,
I text I text media join and input करे collapse and prompt create strap है वो रिटर्न करेगा ओके स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ईमेल ये और ये रिस्पॉन्स करेगा राइट कल डीबी हमारा हो गया उसके बाद लैपटॉप रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड हो गया उसके बाद लैपटॉप रिकॉर्ड शिफ्ट एंटर so what will be wrap text okay shift this we are record shift enter shift enter check not be callable सो हमारा ये भी हो गया टीवी हमने दे दिया यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्ट्रिंग यार हमने कौन स्ट्रिंग दिया है दिस इज सो what will be right now for the join dbs record हमारे यहाँ पर आ गया पैराग्राफ हमने इसको बना दिया टेक्स्ट फिल हो गया पैराग्राफ हो गया ब्रेथ हो गया 80 हो गया प्रिंट हमने ये कराना है लाइन नंबर 6 1 2 3 4 5 प्रिंट wrap में पैराग्राफ टर्न शिफ्ट एंटर ओके माय ग्राफ पैराग्राफ आ गया मैं इसको पैराग्राफ आ गया हमारा 10 शिफ्ट एंटर ओके वेब आ गया हमारा ठीक है अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट एंटर प्रिंट में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी ओपन ओके कहीं ना कहीं प्रिंट इज नॉट वर्किंग so let's be start enter query then start what will ओके 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 इसको हम सबसे टॉप पे ही रखेंगे मल्टीपल टाइम्स हमने इंपोर्ट किया है टेक्स्ट वेब इसको भी यहाँ से हटाएंगे जो होता है इसको भी हमने यहाँ पर ठीक है ओके दैट्स फाइन अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं शिफ्ट एंटर हमारा ये हो गया दिस वन ओके दैट्स ग्रेट query and this one okay
जो रिस्पॉन्स फंक्शंस फंक्शंस में आ रहा है रिस्पॉन्स what will be right happen will be happen ड्रग होना तो नहीं चाहिए इसको आपको स्टार्ट कहना इसको प्रिंट करना चाहिए बट व्हाई नॉट बी प्रिंट अगर ये यहाँ तक आता है तो प्रिंट ओके कर ओह दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट टाइम टेकन टेकिंग टाइम प्रोसेस ओके ओके हम इसको हटा देते हैं यहाँ सो काफ़ी टाइम लिया इसने आई थिंक लाइब्रेरीज लोड कर रहा था ये सो pip इंस्टॉल हमने एपीआई कॉल कराया इंस्टॉल किया ओएस किया ओके सो हेयर वी जनरेट सो लेट्स टू रिस्पॉन्स के यहाँ पर हमने रिकॉर्ड डीबी से था वो कराया सो वेब टेक्स्ट हमारे पास आ गया उसके बाद हमने किया कि क्वायरी पूछी हमने हाउ टू द ओरिकल आरजी अप्रोच रैग अप्रोच ओके तो उसमें हमारा जो फंक्शन था उसमें हमारी क्वायरी गई एलएलएम रिस्पॉन्स लिखा है अब हमें क्या चाहिए कि हमारा आउटपुट हो कैसा कैसा दिखने में चाहिए तो उसने कहा कि 80 सो यू कैन से दैट
कि यहाँ पर 80 आ गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इस रिस्पॉन्स प्रिंट में, आउटपुट में 80 की जगह मैं 100 कर दूँ, what will be happen right now? You can say that I will be run shift enter. So time take, okay, going the for the 100. Shift enter, shift enter, shift enter, 100 पे full आ रहा है, okay. What will be response? Okay. So here you can see response. What will be response right now here? So हमने करा क्या है इसमें कि इसका बेसिकली डायग्राम बनाया हम। स्टेप 1 में ओपन एआई कॉल किया। स्टेप 2 हमने जो इनपुट है उसको डिफाइन किया। फंक्शन जो हमारा इनपुट होगा वो कैसा बिहेव करेगा वो डिफाइन किया। देन हमने रिस्पॉन्स फंक्शन डिफाइन किया। ओके, देन हमने डीबी है, डीबी में रिकॉर्ड्स थे उनको हम क्या कहते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने, उसको डेटा क्लीन किया। हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट की डेटा, क्लीन एंड लॉग। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं हमने उसको कॉल किया। इनपुट्स जो डीबी था उसको हमने इनपुट बनाया और उस इनपुट को हमने कॉल कराया दिस फंक्शन, इस फंक्शन को। इस फंक्शन से जो रिस्पॉन्स आया हमें किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। जिस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए हमने उस रिस्पॉन्स वाले फंक्शन को कॉल करा दिया लास्ट में, और इसने हमें ला के दे दिया आउटपुट। आज हमने ये छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है इन्वायरमेंट में। आपको कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो पहले पिप इंस्टॉल ओपन एपीआई किया, फिर हमने यहाँ किया ओएस ओपन एआई क्लाउड इवेंट्स, ट्राई में किया, ट्राई में एक्सेप्शंस किया, एपीआई ओपन इन्वायरमेंट से किया। ओके, यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स डिफाइन किए, यूज़र प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पर हमने काफ़ी सही किया। और यहाँ पर हमने एक रिस्पॉन्स प्रिंट करा दिया टेक्स्ट वेब डॉट टेक्स्ट स्टैक कि कैसा जो आउटपुट है वो हमारा आएगा फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आउटपुट, राइट। और यहाँ पर डीबी हो गया, और यहाँ पर पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वेब हमारा ये आ गया, क्लीन होकर डेटा हमारा पास आ गया। अब हम इसको क्वेरी दे रहे हैं हाउ टू द ऑरिकल अप्रोचेस, तो उसने ये पूरा हमें दे दिया। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट इज, उससे पूछ सकते हैं व्हाट इज रैग। सो व्हाट विल बी राइट है, व्हाट विल बी एंटर एंटर, देन व्हाट कैन बी से। इसमें रैग की इंफॉर्मेशन हमें उठा के दे दी। रैग हम कहेंगे अब फुल फॉर्म दो मुझे, जो भी हमारा डेटाबेस में होगा उससे वो फैच करके हमारा एलएलएम मॉडल उसको देगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। सो इसमें हमने ये कुछ किया। सो
टाइम हो गया है 22:16। 11-12 बजने वाले हैं। 10 बज चुके हैं। सो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज, एवोल्यूशंस, वैल्यूएशंस, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कोसाइन सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, इनहैंस सिमिलरिटीज पढ़ेंगे। फिर हम नेटिव्स ग्राफ पे भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग, वेक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा, वो भी देखेंगे। वेक्टराइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एलएलएम। सो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कल की वीडियो भी इसी टाइम आए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक कर देते हैं जैन एआई एलएलएम सीरीज पार्ट 1। कंप्यूटर में थोड़ा सही लगेगा। स्टेप डिफाइन करते हैं। स्टेप 1 कॉल एपी ओपन एपीआई। स्टेप 2 source input puts response. Yes, you can say that. And step 3 generator. Step 4 clean the data. Step 5 load query. Okay, and you can save. Save as.
Consider. I know.